تو ماں کتنی بے شرم لڑکی ہے، 7واں مہینہ چل رہا ہے پھر بھی آفس آ رہی ہے۔ ایمان کی آفس کلیگ خسر پسر کر رہی تھی۔ اس نے ضبط سے لب بھیجے تھے۔ شادی کو 1 مہینہ ہوا تھا کہ اچانک اس کا شوہر مر گیا۔ وہ عدت میں تھی جب پتہ چلا کہ حاملہ ہے۔ نوکری کرنا اس کی مجبوری تھی ورنہ بھوکی مرتی۔ اس دن اس کی حالت روحان شاہ نے دیکھ لی جو اس کمپنی کا اونر تھا۔ آپ چھٹیاں لے لیجئے مس، شرم آنی چاہیے آپ کے شوہر کو، ایسی حالت میں آپ کو بھیج رہے ہیں۔ وہ سر جھکائے، آنکھوں میں نمی لیے ہاتھ مسلنے لگی۔ سر وہ میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ روحان بت بن گیا۔ نازک گلاب سے چہرے والی یہ لڑکی اس کے دل میں اچانک، ایمان دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ایمان جو اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی، یوں اچانک ذیشان کا آفس سے واپس آنا اس کے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ ذیشان آپ اتنی جلدی آ گئے؟ آج تو آپ کی میٹنگ تھی نا، اور آپ بول رہے تھے میں لیٹ آؤں گا۔ ارے جب اتنی پیاری سی وائف گھر میں موجود ہو تو پھر لیٹ آنے کا دل کس کا کرتا ہے؟ وہ شوخی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جس پر ایمان کے گال لال ہوئے تھے اور وہ شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ ارے شرماؤ مت، میں تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ چیزیں لایا ہوں۔ وہ اسے ایک شاہ پر دکھاتا ہوا بولا جس میں ایمان کی کھانے کی پسند کی چیزیں تھیں۔ دونوں کی شادی کو بھی چند دن ہی گزرے تھے۔ ذیشان اور ایمان نے پسند کی شادی کی تھی۔ ذیشان کے گھر والے ایمان کو بہت کم پسند کرتے تھے، مگر ذیشان کو اپنی بیوی دل و جان سے پیاری تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت اسے خوش رکھے، کسی بھی طریقے کا کوئی دکھ یا تکلیف نہ ہو۔ اچھا یوں شرماتی ہی رہو گی یا پھر کھانا نکالو گی؟ جلدی لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ایمان جلدی سے اٹھی اور کچن کی طرف دوڑی۔ جب وہ کچن میں گئی تو اس کی ساس کچن میں موجود تھی۔ یہ میڈم تم پلیٹس لے کر کہاں جا رہی ہو؟ آنٹی وہ ذیشان نے منگوائی ہیں۔ ضرور تمہارے لیے کوئی چوری چھپے لوازمات لایا ہوگا۔ کیسے میرے بیٹے کو تم نے انگلی پہ نچا رہی ہو؟ تمہارے اشاروں پہ وہ ناچتا ہے۔ مگر ایمان انہیں اگنور کرتی ہوئی پھر سے اپنے روم میں آ گئی تھی اور اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ایمان؟ امی نے کچھ کہا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ذیشان کھانا نکالنے لگا تھا۔ ذیشان آپ کبھی بدلیں گے تو نہیں نا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ذیشان نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے اور اپنے سینے سے لگا لیے۔ یہ دھڑکن محسوس کرو ایمان، تمہارے لیے صرف اور صرف دل دھڑکتا ہے، اور تم کیا سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ چلو شاباش، موڈ مت آف کرو، کھانا کھاتے ہیں۔ جلدی سے تو انہوں نے کھانا نکالا اور ذیشان اپنے ہاتھ سے ایمان کو کھانا کھلانے لگا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ذیشان کا کہنا تھا کہ اسے ایک ضروری کام ہے، لیکن وہ 10 منٹ کے اندر اندر ہی واپس آ جائے گا۔ برتن وغیرہ سمیٹنے کے بعد ذیشان نے ایک بار اسے اپنے گلے سے لگایا تھا اور یہاں تک کہ اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر سپت کی تھی۔ یہ لمحہ پا کر ایمان نے اندر تک سکون محسوس کیا تھا۔ ذیشان چلا گیا تھا۔ ایمان اپنے روم میں بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ 10 منٹ کا کہہ کر گیا تھا لیکن اب تو اسے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اب ایمان کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ ایمان اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ جب بھی کہیں جاتا ایمان اسے بار بار کال کر کے اس کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی، مگر اب تو گھنٹہ ہو چکا تھا، کوئی کال کوئی میسج نہیں تھے۔ ایمان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ وہ مسلسل کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں تھا اسے کیا معلوم تھا کہ ذیشان آخری بار اسے گلے لگا کر کیا ہے، اور قسمت اس کو ایک بار پھر دھوکہ دینے والی ہے۔ جس کے ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی گزارنے کے خواب سجائے تھے، اسے ہی زندگی دھوکہ دے دی گی۔ یہاں تک کہ ایمان نے جلدی سے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر دعا مانگنے لگی تھی، مگر آج تو اس کی دعائیں بھی عرش سے ٹکرا ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا موبائل ٹو ٹو کرنے لگا تھا۔ وہ جائے نماز سے بھاگتی ہوئی بیڈ کی طرف آئی اور موبائل اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ وہ بھی سوچے سمجھے بنا کہ ان نون نمبر ہے، لیکن امید تھی کہ شاید ذیشان کا نمبر ہو یا اس کی کال ہو۔ وہ ہمیشہ جب بھی سے دور ہوتا تھا وہ اتنی بےتاب ہو جایا کرتی تھی۔ ہیلو ذیشان، تم کہاں ہو؟ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر بولی۔ جی آپ ذیشان کی مسز بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے جواب آیا، جی میں ذیشان کی مسز بات کر رہی ہوں۔ پلیز آپ انہیں کہیں کہ وہ مجھ سے ایک بار بات کر لیں، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اب کی بار ایمان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ سوری میم، لیکن ذیشان اس وقت ICU میں ہے، ان کا بہت خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ذیشان کو کچھ نہیں ہوا، وہ ابھی تو گھر سے گئے ہیں۔ نہیں میم، میں آپ کو ہاسپٹل کا ایڈریس وغیرہ سینڈ کرتا ہوں،
ان کی حالت بہت سیریس ہے، چاہے تو آپ انہیں آ کر مل سکتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایمان کو لوکیشن وغیرہ سب کچھ ریسیو ہو گیا تھا۔ ایمان بھاگتی ہوئی باہر کی طرف گئی اور رونے لگی۔ اپنی ساس کو کہنے لگی، آنٹی ذیشان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کی ماں بجائے اس کا حوصلہ دینے کے یا اس کے ساتھ چلنے کے اس پر ہی برس پڑی۔ ارے منحوس، جب سے تم اس کی زندگی میں آئی ہو میرا بچہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے، تمہاری وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے۔ آنٹی پلیز، ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ ذیشان کی دونوں بہنیں بھی پہنچ آئی تھیں، مگر ان کے پوچھنے تک ذیشان خالی کی حقیقی سے جا ملا تھا۔ جب ایمان وہاں پہنچی تو اسٹریچر پر سفید کپڑا اوڑھے انہوں نے ذیشان کی ڈیڈ باڈی کو باہر نکالا۔ اس کے لیے سب سے مشکل گھڑی تھی۔ ایمان نے محسوس کیا تھا کہ اب وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ذیشان نہیں ہے، وہ چیخ رہی تھی۔ اب دوسرا کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی نند اس کی ماں کی نسبت کچھ اچھی تھی۔ وہ اسے دلاسا دینے لگی، مگر جب ایمان نے اسٹریچر کے سہارے خود کو کھڑا کیا اور کانپتے ہاتھوں سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، وہ سچ مچ ذیشان ہی تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چیخنے لگی تھی، چلانے لگی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ ذیشان کی بہنوں سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ وہ ذیشان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا اور اکیلی ہو گئی تھی۔ ہر وقت اداس اور روتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب بھی کمرے سے باہر نکلتی تو اس کی ساس اسے تانے دینے لگتی، منحوس کہیں کی، میرا بیٹا کھا گئی ہو، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے، تم نے ایک ماں کے بیٹے کو اس سے جدا کر دیا ہے۔ ایمان کے لیے تو قسمت ہی خراب تھی، اسے اس کی ساس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بس وہ چپ چاپ اپنی ساس کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ آج کل ایمان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، اچانک سے اسے چکر آنے لگے تھے۔ آج اس کی بڑی نند بھی آئی ہوئی تھی۔ امی جان، آپ تو ہر وقت بھابھی کو ڈانٹتی ہی رہتی ہیں، ان کی طبیعت کا تو خیال کر لیں۔ میں تو کہتی ہوں اس منحوس کی عدت پوری ہو اور یہ گھر سے دفع ہو جائے، اور اپنے ماں باپ کی ہم نہیں سنبھال سکتے اس بوجھ کو۔ ذیشان کے لیے ضروری تھی مگر ہمارے لیے نہیں۔ ذیشان کی خاطر اس سے رشتہ جوڑا تھا، اب وہ نہیں رہا تو اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جلدی سے عدت پوری ہوگی تو اسے میں چلتا کروں گی۔ امی کچھ تو خیال کر لیں، بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ اس کی نند نے ڈاکٹر کو کال کی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئی، اس نے کچھ چیک اپ کیا، چیک اپ کے بعد بتایا کہ مبارک ہو، آپ کی بھابھی حاملہ ہے۔ یہ بات سن کر ایمان کی نند تو کھل اٹھی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سی لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ بات سنی تو ایمان کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چلو اس کے پاس کچھ تو تھا ذیشان کی نشانی۔ وہ مسکرائی تھی مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ ذیشان جس سے اس نے زندگی کے کتنے پل گزارنے کے خواب دیکھے تھے، چند ہی دنوں میں مٹی میں ڈھیر ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر چلی گئی تو اس کی ساس پھر سے اسے چلانے لگی، مجھے تو نہیں لگتا، پتہ نہیں کس کے ساتھ گل کھلائے ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ خون میرے ذیشان کا ہوگا۔ امی خدا کے لیے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کچھ تو خیال کر لیں ان کی حالت کا۔ آپ کو نہیں پتا بھائی کے بچے کی وہ ماں بننے والی ہے؟ تمہیں زیادہ ہمدردی ہے تو تم اسے اپنے گھر لے جاؤ، بلکہ میں تو اس کے گھر والوں کو کال کروں گی، نہ جانے کس کا گندا خون اب ذیشان کے نام پہ ملے گی۔ میں بہتر جانتی ہوں اس لڑکی کو، جیسے اس کی ماں تھی ویسے ہی یہ لڑکی خود ہے۔ ایمان ذیشان کی پھپھو کی بیٹی تھی اور اپنی نند ذیشان کی ماں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ذیشان اکلوتا بھائی تھا جس کی وجہ سے ضد میں آ کر اس نے صرف اور صرف یہی انتخاب کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف ایمان سے ہی شادی کرے گا۔ ایمان کا دوسرا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا اور اب تو کچھ ہی دن اس کی عدت کو بھی رہ گئے تھے۔ جیسے اس کی عدت پوری ہوئی تو اس کی ساس نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع کر دیے تھے۔ بس تمہاری عدت ختم ہو گئی ہے، اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ۔ اس کی ساس نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ اب وہ بالکل بے آسرا تھی۔ اس کے ماں باپ جس سے اس نے ضد میں آ کر ذیشان سے شادی کی تھی، نہ ذیشان رہا نہ ہی ماں باپ، لیکن اس نے پھر بھی ایک امید کا دامن تھامتے ہوئے اپنی ماں کے گھر کا رخ کیا۔ رکشے میں بیٹھی اور سیدھا اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ دروازہ بجایا تو اس کی بڑی بھابھی نے گیٹ کھولا۔ اس کی بڑی بھابھی سے دیکھ کر ماتھے پر بل لیے سمجھ چکی تھی کہ شاید وہ زندگی بھر کے لیے ان کے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ ہاتھ میں کپڑوں والا بیگ دیکھ کر تو مزید اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ تو آ گئی ہو اجڑ کر ہمارے پاس واپس، یہ الفاظ تھے یا تیر جو ایمان کے دل میں چبھے تھے، مگر ایمان خاموشی سے اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ خاموشی سے جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ امی کدھر ہے؟
थोड़ी देर बाद ईमान की माँ आई तो रोते हुए इसे सीने से लगा लिया था। माँ की ममता तो पराई नहीं हो सकती, इसके लिए चाहे पूरा जहां पराया हो जाए। अम्मी जान वो आज सारा दुख निकालना चाहती थी। अपनी माँ को बता रही थी कि इसका ज़ीशान किस तरह चला गया है और वो बिल्कुल दुनिया में अकेली रह गई है। इसकी माँ ने दिलासा दिया, अभी मैं हूं ना ईमान, मेरे जीते जी मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा और मैं अपनी बेटी को यूँ रुस्वा नहीं होने दूंगी। बस तुम अपना ख्याल रखो ईमान, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आती हूँ। वैसे हैरानी की बात है अम्मी जी, ईमान के आते हुए तो आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ये मैडम जहाँ आई है इसे ये भी बता दीजिए कि ये घर हमारे शोहरों का है और हम इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी अम्मी कुछ कहे बिना ईमान को अपने कमरे में ले गई और इसको कहने लगी, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। वो अपनी माँ को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। जो भी था, ये एक माँ इसका वाहिद सहारा थी। ईमान बस खामोशी से बेड पर लेटी छत को घूरे जा रही थी। अपने साथ हुए हादसे को भूल ही नहीं पा रही थी। ज़ीशान, इसकी मोहब्बत, इसका प्यार, सब कुछ तो वो महसूस करना चाह रही थी, मगर कुदरत दूर इसकी इस बेबसी पर हंस रही थी। वो दर्द से आंखें मूंद कर लेट गई थी और न जाने कब नींद की वादियों में चली गई थी। एक ख्वाब, एक मीठी नींद जो इसके इर्द गिर्द भटकने लगा था। ईमान किसी ने इस नरमी से इसकी गाल छुए थे जिसे देखकर वो खिली थी। ज़ीशान, आप किधर चले गए थे? वो एक बार फिर से रोती हुई इसके गले लग गई थी। वो आहिस्तगी से इसकी पुश्त को सहला रहा था, मगर अगले ही पल वो ख्वाब धुंधला होता गया और वो हकीकत में वापस लौट आई थी। नहीं ज़ीशान, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं ज़ीशान। वो बेड पर उठ बैठी थी और लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। अब इसका सांस उखड़ने लगा था। या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों? एक बार फिर वो रोती हुई अल्लाह को अपने दर्दों और दुखों की दास्तान सुनाने लगी थी, मगर कुदरत के कुछ और ही फैसले थे। थोड़ी देर बाद इसकी माँ ने इसे खाना वगैरह खिलाया तो ईमान सो गई थी, मगर अगले दिन जब उठी तो इसके लिए एक नया इम्तिहान खड़ा हो गया। नाश्ते की टेबल पर इसके भाइयों ने साफ साफ कह दिया था, अगर ईमान को इस घर में रहना है तो इसे कहें कि अपना खर्चा खुद उठाए, और ये जो इसका बच्चा आने वाला है इसका भी खर्चा हम नहीं उठाएंगे। हम अपनी बीवी बच्चों का पेट पालें या ईमान का पेट पालें, पता नहीं अम्मी का खर्चा कितनी मुश्किल से उठा रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो हम इसे रहने को छत भी नहीं देंगे। अपने लिए किराए का मकान ढूंढे और इधर जाकर रहे। इसका भाई ये कहकर ऑफिस जा चुका था। एक नई परेशानी ईमान को घेर रही थी। ईमान ने सोच लिया था वो कुछ ही दिनों में इंटरव्यू देने चली जाएगी। अब तो इसका चौथा महीना भी स्टार्ट हो चुका था और डॉक्टर के पास जाने के भी इसके पास पैसे नहीं थे। शुरू में तो इसकी माँ ने इसकी मदद की, अचानक से इसकी माँ भी बीमार रहने लगी थी और यही वक्त था इसकी माँ भी खुदा को प्यारी हो गई थी। अब वो जिंदगी के दुख और दर्दों को झेलने के लिए बिल्कुल अकेली और तन्हा हो गई थी। माँ के जाते बहन भाइयों ने नजरें फेर ली थी। सब इसके लिए अजनबी हो गए थे। कोई इसे खाने का नहीं पूछता था। आज इसने तंग आकर इंटरव्यू के लिए सीवी उठाई और घर से बाहर निकल पड़ी थी। खुद को चादर में ढांपे हुए एक ऑफिस जा पहुंची। इसकी दोस्त ने इसे बताया था कि अच्छी नौकरी है और इसे अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी, इसलिए वो इस मौके को हाथ से न जाने दे। थोड़ी देर बाद इसका इंटरव्यू लिया गया तो इंटरव्यू में वो पास हो गई थी और इन्हें ऑफिस के ज्वाइनिंग का भी वक्त बता दिया गया था। चंद ही दिनों में ईमान ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अब इसके लिए ज़िंदगी की एक ही उम्मीद थी, इसका बच्चा। वो चाहती थी वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करे और अपने बच्चे को एक महफूज मुस्तकबिल दे। आहिस्ता आहिस्ता इसने ऑफिस में जान पहचान बना दी थी। अब तो वो कंप्यूटर पर बैठकर आसानी से काम भी कर सकती थी। ज़्यादा देर थकती नहीं थी। घर आकर अपने लिए खाने की चीज़ें लाती, खाती और ऐसी ज़िंदगी इसकी चल पड़ी थी। आज जब इसे पे मिली तो वो कुछ फ्रूट्स लेकर घर दाखिल हो रही थी। इसका सामना बड़ी भाभी से हुआ। तुम्हारे तो बड़े ठाट बाट हैं, कहाँ से आ रहा है ये पैसा और किसके साथ गुल खिलाती फिर रही हो? खुदा के लिए भाभी, अपनी ज़ुबान संभाल के बात कीजिए। मैं अपनी हक हलाल की कमाई खा रही हूँ और आपको अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। अरे बीबी, रह तो हमारे घर ही रही हो ना, हक हलाल की कमाई खा रही हो, चार पैसे के आगे हमें तो देखते नजरें फेर ली तुमने। हाँ, अगर इस घर में रहना है ना तो तुम्हें किराया देना पड़ेगा। वैसे भाभी, आपको शर्म नहीं आती? ये मेरे बाप का घर है, आप जिसका किराया वसूल कर रहे हैं ना, तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चल बसे हैं। अब मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ और तुम्हारी जुबान ज़्यादा ही चलने लगी है। अगले पर इसकी भाभी ने झपट कर इसके बाल पकड़ लिए थे। छोड़े मुझे भाभी, दर्द हो रहा है, छोड़े मुझे। वाह, दर्द हो रहा है। वो इसे झटकती हुई अपने रूम में चली गई थी। आज जब इसका भाई वापस आया तो इतने में ही इसकी भाभी ने ड्रामा खड़ा कर दिया था। क्या था, अगर ईमान ने यहाँ रहना है तो इसे बोले कि इसे घर का किराया देगी।
ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसे तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। अब क्या मैं अपनी बहन से छत का भी किराया लूँगा? तो ठीक है, फिर इसे किसी और जगह शिफ्ट कर दे। अगर आपकी बहन यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इसकी भाभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। ये ईमान सुन चुकी थी। वो आहिस्तगी से बाहर की तरफ आई। जो भी था, फिर भी एक महफूज छत तो थी ना। अगर वो कहीं और जाती तो लोग इसे नोच खाते। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा बजाकर बोली, भाई, मैं आपको हर महीने सिर्फ और सिर्फ 5,000 किराया ही दे सकती हूँ। इसकी भाभी की बाछें खुल गई थी। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम 5,000 आती ही सैलरी मेरे हाथ पे रख देना। इसका भाई नफ़ी में सर हिला रहा था। इतना ही मजबूर और उतनी ही बेबस इसकी बहन थी। सच ही कहते हैं, शोहर के सिवा कोई सगा नहीं होता। ईमान रूम में वापस आकर कितनी देर बैठकर अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रही थी, मगर फिर इसने अपने बच्चे की तरफ ध्यान दिया तो इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। इसकी जिंदगी, इसके जीने की उम्मीद थी वो बच्चा, और इस बच्चे की खातिर ही तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन इसने अपने बच्चे को सब कुछ मान लिया था। इसके पास जिशान की सबसे बड़ी निशानी इसका बच्चा ही तो था। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता छठा माह शुरू हो चुका था। अब वो मजीद अपनी प्रेगनेंसी छुपा नहीं पा रही थी। ऑफिस जाते हुए इसका सांस फूल जाता था, मगर जो भी था, इसे जिंदा रहने के लिए और अपने बच्चे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अद्वियात के खर्चे उठाने के लिए नौकरी तो करनी ही थी। वो अपने भाई पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो ऑफिस पहुंच गई तो इसका सांस बहुत फूल गया था। जाते ही वो बैठी और न जाने इसकी आंख लग गई थी, और होश तब आया जब साथ वाली कोलीग ने इसे आकर जगाया। हेलो मिस ईमान, किधर खोई हुई हैं? आपको पता है ना, ये वर्क टाइम है और आप सो रही हैं। आपको पता है अगर रूहान सर को पता चला तो आपको निकाल भी सकते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसका सर भारी हो रहा था। कहते ही साथ इसकी कोलीग ने जल्दी से गिलास में पानी डालकर लबों के साथ लगाया था। तुम ठीक हो? इसने ईमान को दिलासा देते हुए पूछा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। इसने इस बात में सर हिलाया था। मुझे लग रहा है ईमान तुम प्रेग्नेंट हो। वो इससे सवाल करने लगी थी। ईमान ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिला गई। तो तुम्हें घर आराम करना चाहिए था। ऑफिस से छुट्टियां ले लो ईमान। कुछ कहे बिना अपना लैपटॉप ओपन किए हुए फाइल्स की तरतीब सेट करने लगी थी और इसे कुछ नहीं बता पा रही थी। साथ वाली कोलीग हैरान थी कि कितने बेहस होंगे इसके घर वाले, जो इसकी हालत में भी बेचारी को ऑफिस भेज रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम था किन दर्दों से गुजर कर ईमान काम पर आ रही है। बार बार काम करते हुए ईमान का सर चकरा रहा था। शायद इसका बीपी लो था। थोड़ी देर बाद इसने कैंटीन से चाय और खाने के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी। वो बैठी खा रही थी जब सर राउंड पर थे। इसे यूं देखकर इससे बहुत गुस्से हुए थे। अपनी सेक्रेटरी से कहने लगे, सना, क्या एम्प्लॉयज़ को मालूम नहीं है कि काम के वक्त सिर्फ काम होता है, और यहाँ तो पार्टियाँ चल रही हैं। इसे देखकर इस कदर गुस्सा हुआ था। इसे तो नहीं मालूम था कि ईमान की कैसी हालत है। सना ने भी ईमान को डांटा था। मिस ईमान, अगर आपको काम करना है तो दिल लगा कर किया करें। यहाँ पार्टियाँ नहीं चलेंगी। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसकी आवाज़ से अभी मालूम हो रहा था शायद वो दर्द में थी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप ऑफिस की फार्मेसी में जाके अपना चेकअप करवा कर आती। इसे अगले ही पल सेक्रेटरी ने हदायत दी थी। ईमान को तो ये बात अभी तक मालूम ही नहीं थी कि ऑफिस में फार्मेसी की भी सहूलियात मौजूद हैं। जी ठीक है, इसने इस बात में सर हिलाया था। बॉस इसे राउंड का कहकर अंदर चले गए थे। पहली बार इसने आज बॉस को देखा था, जो कि इसे बहुत ही अकड़ू किस्म के इंसान लगे थे। मगर इसे इन सब से क्या था? इसने तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम सर अंजाम देना था। रूहान ऑफिस में भी जाकर सेक्रेटरी पर बरस पड़ा था। सना, ये तुमने कैसे कैसे लोग रख ली हैं? तुम्हें पता है ना, मुझे लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन इनकी वाकई तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी तो छुट्टी लेकर घर बैठे। ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं डिसिप्लिन को मज़ीद ख़राब नहीं होने दूंगा। आज एक लड़की बैठकर खा रही है, कल 2 खाएंगी, फिर 3 खाएंगी। इस तरह मेरा ऑफिस कैसे चलेगा? रूहान एक सख्त और उसूल पसंद इंसान था। ठीक है बॉस, मैं इन्हें हदायत दे दूंगी, बस आप परेशान मत हो। जितनी जल्दी हो सके आप इन्हें समझा दीजिएगा, क्योंकि अगर ज़रा सा भी काम गलत हुआ तो मैं इस लड़की को निकाल दूंगा, बल्कि हर ऐसी एम्प्लॉय को निकाल दूंगा जो कि ऐसी हरकत करता है। जी बॉस, ठीक है, आप परेशान मत हो। सना ये कहती हुई ऑफिस से बाहर आ गई थी और आते ही एक बार फिर ईमान पर बरस पड़ी थी। मिस ईमान, आइंदा आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। आपको मालूम होना चाहिए ये ऑफिस है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप छुट्टी लेकर घर बैठे या आराम करें। बॉस का कहना है कि आइंदा आपको इस हालत में ना देखे। आई एम सॉरी, मैं आपके बॉस को अब कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ओके, जल्दी से अपना काम ख़त्म करो, फिर तुम छुट्टी कर सकती हो। शुक्रिया। ये कहती हुई फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे थे। अब तो ईमान बहुत बीमार रहने लगी थी, यहाँ तक कि चेहरे की रंगत जर्द पड़ने लगी थी।
जैसे जैसे इसके दिन बढ़ रहे थे ऐसे ऐसे इसकी थकावट भी बढ़ रही थी। अब तो इसका 7वां मंथ स्टार्ट हो चुका था और वो खुद को बिल्कुल भी चादर में नहीं छुपा पा रही थी। अब तो ऑफिस में इन लोगों ने तरह तरह के तंज करना शुरू कर दिए थे। आज वो जब सुबह ऑफिस पहुंची तो पहले तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। इसने फार्मेसी से जाकर कुछ मेडिसिन ली और फिर ऑफिस आकर अपना काम करने लगी। इतने में 2 एम्प्लॉई आपस में चाय मगोइयाँ करती हुई दाखिल हुई। अरे देखो कितनी बेशरम इंसान है, इस हालत में भी कोई भला बाहर निकलता है। बेशरम क्यों ना हो, पैसे का हवस होगा इसीलिए तो आ जाती है। ये भी ध्यान नहीं करती कि मेरे पेट में बच्चा है। इस हालत में तो औरतें खुद को छुपा कर रखती हैं और ये पेट निकाल कर मर्दों को दीदार करवाती फिर रही है। ईमान सब्र से इसकी बातें सुनती रही थी और अपनी आंसुओं को जब्त कर रही थी। इससे भला कहाँ शौक था कि दर दर की ठोकरें खाए और इस हालत में भी ऑफिस आए, मगर कुदरत को यही मंजूर था। इसका सब्र और इम्तिहान था जिसमें वो चाहती थी वो सुरखरू हो जाए। काफ़ी देर बैठी वो काम करती रही थी। अब तो अचानक से इसे चक्कर भी आने लगे थे, मगर वो खुद को संभालती एक बार फिर एक मेडिसिन की डोज ले गई और यहाँ तक इसने जल्दी से पानी लबों से लगाया। इतने में सिक्योरिटी में आकर हिदायत की, मिस ईमान ये सारी फाइल जाके बॉस के रूम में इन्हें चेक करवा के आए और अगर इनमें से कोई मिस गाइड है तो वो मुझे आकर गाइड कर दीजिए। जी श्योर। वो सारी फाइलों का ढेर उठाती हुई फूले हुए सांस के साथ बॉस का ऑफिस नॉक करने लगी। यस आ जाओ। अगली पल से दरवाज़ा खोला और वो अंदर जाकर खड़ी हो गई, मगर इसके लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। रूहान ने इस पर एक निगाह डाली। अगली पल शर्मिंदगी से वो सर झुका गया था। इससे मालूम हो गया था कि इसकी वाकई कंडीशन ऐसी नहीं है और इस दिन वाली बातें भी याद आ गई थी। इससे मजीद खड़ा नहीं करना चाहता था। जल्दी से इसने चेयर की तरफ इशारा किया। मिस ईमान आप बैठ भी सकती हैं। शुक्रिया सर। वो फूलते हुए सांस के साथ बैठ गई थी। पानी पी सकती हो? वो हिचकिचाते हुए बोली थी। यस श्योर, बल्कि रुके मैं देता हूँ। आज से पहले रूहान शाह ने कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन आज वो खुद गिलास में पानी डालकर इसके सामने पेश कर रहा था। अगले ही पल ईमान ने पानी लबों के साथ लगाया और सुख का सांस लिया था। रूहान जल्दी से फाइल चेक करने लगा था। फाइल चेक करने के बाद ईमान वापस जाने लगी थी जब रूहान ने इसे रोका था। मिस ईमान, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इसकी संजीदा आवाज़ पर ईमान के कदम रुक गए थे। वो मुड़कर इसकी तरफ देखने लगी। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसने धीमी आवाज़ में कहा था। रूहान ने चंद लम्हे से देखा जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो, फिर बोला, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप इस हालत में काम क्यों कर रही हैं? आप छुट्टी ले सकती हैं। ईमान के लबों पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट आई थी। सर, अगर छुट्टी ले लूँ तो खाऊंगी क्या? इसके लहजे में थकन भी थी और बेबसी भी। रूहान चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया था, जैसे इसके पास इस सवाल का कोई जवाब न हो। वो सिर्फ इसे देखता रह गया था। ईमान ने नजरें झुका ली। सर, मैं इजाज़त चाहती हूँ, काम बहुत है। वो मुड़ने लगी थी कि रूहान ने दोबारा इसे रोका। 1 मिनट मिस ईमान, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ईमान चौंकी थी। इसने फौरन इनकार में सर हिलाया। नहीं सर, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूँगी। इसके लहजे में खुददारी साफ झलक रही थी। रूहान ने गहरा सांस लिया, जैसे वो पहले इस जवाब की तवक्या कर रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे बता सकती हैं। ये ऑफिस है और यहाँ हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी मेरी है। ईमान ने हल्का सा सर हिला दिया और खामोशी से बाहर निकल आई थी। बाहर आकर वो सीधी अपनी सीट पर आ बैठी थी। दिल अजीब सा हो रहा था। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ लोगों की बातें, तीसरी तरफ आने वाले वक्त का खौफ। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर आंखों में नमी तैरने लगी थी। इसने फौरन अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि कोई देख न ले। इसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो काम में जुट गई थी, क्योंकि यही इसकी मजबूरी थी, यही इसकी जंग थी। दिन गुजरते गए और ईमान की हालत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। पेट अब नुमाया हो चुका था। चलना फिरना मुश्किल हो रहा था, मगर वो हिम्मत नहीं हार रही थी। हर रोज़ सुबह उठती, खुद को संभालती और ऑफिस चली जाती थी। घर में भी हालात बेहतर नहीं थे। भाभी का रवैया वैसा ही था। हर महीने की तनख्वाह आते ही वो 5,000 इसके हाथ पर रख देती और बाकी पैसों से अपने लिए दवाइयाँ और थोड़ा बहुत खाना खरीद देती थी। कई बार ऐसा भी होता कि वो खुद भूखी रह जाती, मगर अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ ज़रूर ले आती थी। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए अचानक इसे शदीद चक्कर आया और इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रही थी, मगर कदम साथ नहीं दे रहे थे। अगले ही पल वो ज़मीन पर गिर गई थी। ऑफिस में हलचल मच गई थी। सब लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। किसी ने पानी लाने को कहा, किसी ने डॉक्टर को बुलाने को। सेक्रेटरी सना भी भागती हुई आई और फौरन ऑफिस की फार्मेसी को कॉल की। रूहान अपने कैबिन में था। जब इसी खबर मिली तो फौरन बाहर आया। इसने देखा ईमान बेहोश पड़ी थी।
इसका चेहरा जर्द था, सांस तेज चल रही थी। रूहान के दिल में एक अजीब सा इज़्तिराब पैदा हुआ। इसने फौरन कहा, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। ड्राइवर को बुलाया गया और चंद ही मिनटों में इसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर इसका चेकअप शुरू किया। रूहान बाहर बेचैनी से टहल रहा था। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतना परेशान है। वो तो बस एक एम्प्लॉय थी, मगर इसकी हालत देखकर दिल बेचैन हो गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। आप इसके क्या लगते हैं? डॉक्टर ने सवाल किया। रूहान ने एक लम्हा सोचा, फिर बोला, मैं इसका बॉस हूँ। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, इनकी हालत काफ़ी कमज़ोर है, ब्लड प्रेशर बहुत लो है और इन्हें बहुत शदीद कमज़ोरी है। इन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है और मुनासिब खुराक भी, वरना बच्चे और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। ये सुनकर रूहान के चेहरे पर तशवीश गहरी हो गई थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, क्या हम इनके घर वालों को इत्तला दे दें? डॉक्टर ने सर हिलाया। जी बेहतर होगा। रूहान ने सना को कहा कि ईमान के घर वालों को कॉल करे। कुछ देर बाद इसके भाई को इत्तला दे दी गई थी। कुछ घंटों बाद ईमान को होश आया था। वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देखकर घबरा गई थी। इसने फौरन अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे अपने बच्चे की खैरियत जांच रही हो। आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा बच्चा ठीक है ना? इसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा था। पास पर खड़ी नर्स ने नरमी से कहा, आप फिक्र ना करें, अभी सब ठीक है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना होगा। इसी वक्त रूहान कमरे में दाखिल हुआ था। ईमान ने इसे देखा तो फौरन उठने की कोशिश की, मगर कमज़ोरी के बायस ना उठ सकी। सर मैं ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। रूहान ने इसे रोका। आप लेटी रहें और आराम करें, आपको अपनी हालत का अंदाज़ा है? ईमान ने नज़रें झुका ली। सर मैं ठीक हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, वो हिचकिचाते हुए बोली। रूहान को इसकी बात सुनकर गुस्सा भी आया और अफसोस भी। आप ऑफिस जाने की बात कर रही हैं, जबकि आपकी हालत ऐसी है कि आपको हिलना भी नहीं चाहिए। आपको कुछ दिन मुकम्मल आराम करना होगा। इतने में इसका भाई भी आ गया था। इसने आकर रस्मी सा हाल पूछा और फिर डॉक्टर से बात करने लगा। डॉक्टर ने इसे भी यही बताया कि ईमान को आराम की ज़रूरत है और अच्छी खुराक की भी, मगर इसके भाई के चेहरे पर कोई ख़ास फिक्र नज़र नहीं आ रही थी। हाँ ठीक है, वो बस इतना कहकर खामोश हो गया था। रूहान ये सब देख रहा था। इसे एहसास हो रहा था कि ईमान वाकई अकेली है, इसका कोई अपना नहीं है जो इसका ख्याल रख सके। वो कुछ सोचने लगा था, फिर इसने फैसला किया, मिस ईमान आप कोई दिन ऑफिस ना आए, आपकी छुट्टी अप्रूव है और आपकी सैलरी भी कट नहीं होगी। ईमान ने हैरत से इसकी तरफ देखा। सर मगर, रूहान ने बात काट दी, ये मेरा फैसला है, आपको सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। ईमान की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। शायद पहली बार किसी ने इसके हालात को समझा था। इसने आयशा से कहा, शुक्रिया सर। कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद इसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, मगर अब सवाल ये था कि वो कहाँ जाएगी। घर जाकर भी इसे सुकून नहीं मिलना था। रूहान ने ये बात महसूस कर ली थी। इसे सना से कहा कि वे कोई महफूज जगह का इंतज़ाम करे जहाँ ईमान कुछ दिन आराम कर सके। सना ने एक छोटा सा फ्लैट अरेंज कर दिया था जहाँ बुनियादी सहूलियात मौजूद थी। जब ईमान को वहाँ लाया गया तो वह हैरान रह गई थी। सर ये सब क्यों? वो बोली। रूहान ने मुख्तसर जवाब दिया, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है और आप अकेली नहीं हैं। ईमान के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा था, जैसे बरसों बाद किसी ने इसे सहारा दिया हो। रात को वो बेड पर लेटी, हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, इनमें एक हल्की सी उम्मीद भी शामिल थी। इसने आहिस्ता से कहा, ज़िशान देखो, मैंने हार नहीं मानी, मैं अब भी लड़ रही हूँ हमारे बच्चे के लिए। कहानी यहाँ से एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहाँ ईमान की ज़िंदगी में पहली बार अंधेरे के बाद रोशनी की एक किरण नज़र आ रही थी। मगर क्या ये रोशनी मुस्तकिल होगी या फिर किस्मत एक बार फिर इसके साथ कोई खेल खेलेगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ईमान की ज़िंदगी में पहली बार सुकून के चंद लम्हे आए थे। वो छोटा सा फ्लैट इसके लिए किसी महल से कम नहीं था। ना कोई तंज, ना कोई ताने, ना कोई इल्ज़ाम, सिर्फ खामोशी और सुकून। वो बेड पर लेटी अपने पेट पर हाथ रखे हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी, जैसे अपने बच्चे से बातें कर रही हो। तुम्हारी माँ अब कमज़ोर नहीं है, अब हम दोनों मिलकर जिएंगे, इसने आयशा से कहा था। अगले दिन सुबह दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ईमान चौकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाजे तक गई। दरवाज़ा खोला तो सामने सना खड़ी थी। हाथ में कुछ बैग्स थे। ये आपके लिए है, इसने मुस्कुरा कर कहा। ईमान ने हैरानी से इसे देखा। ये सब क्या है? सना ने अंदर आकर बैग्स टेबल पर रखे। इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ फ्रूट्स और कुछ ज़रूरी चीज़ें। सर ने भेजा है। ईमान खामोश हो गई थी। इसके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई थी। किसी अजनबी का इतना ख्याल रखना इसके लिए नया था।
आप आराम करें और कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। सना ये कहकर चली गई थी। ईमान देर तक इन्हीं बैग्स को देखती रही। फिर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, मगर इस बार ये आंसू शुक्र के थे। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए थे। ईमान की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी थी। वो वक्त पर दवाइयाँ लेती और आराम करती थी, मगर दिल के किसी कोने में एक डर अब भी मौजूद था कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो, कहीं फिर से ये सब कुछ छिन न जाए। एक दिन वो खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी कि अचानक इसका फ़ोन बजा। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ इसकी भाभी थी। हाँ, बड़ी आराम से रह रही हो तुम वहाँ। इसके कलेजे में जहर घुला हुआ था। ईमान ने खामोशी से सुना। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम यो अकेली रह लोगी? लोग क्या कहेंगे? तुम्हें इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? ईमान ने आंखें बंद कर ली। भाभी, मुझे अब किसी के कहने की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। इसकी आवाज़ में अब पहले जैसी कमज़ोरी नहीं थी। भाभी ने तंजिया हंसी हंसी। बड़ी आई खुददार। तुम जैसी लड़कियों का अंजाम मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फ़ोन बंद हो गया था, मगर इसके अल्फाज हवा में गूंज रहे थे। ईमान ने गहरा सांस लिया और ख़ुद को संभाला। नहीं, अब वो टूटने वाली नहीं थी। वो पहले वाली ईमान नहीं रही थी। हालात ने इसे मजबूत बना दिया था। इसी शाम दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार जब इसने दरवाज़ा खोला तो सामने रूहान खड़ा था। ईमान एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। सर, आप यहाँ? वो हिचकिचाई थी। रूहान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ईमान फौरन एक तरफ हट गई। जी सर, आइए। रूहान अंदर आया और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। सब कुछ सादा मगर साफ था। इसने एक नज़र ईमान पर डाली। आज वो पहले से बेहतर लग रही थी। चेहरे पर हल्की सी रौनक वापस आ गई थी। कैसी हैं आप अब? इसने पूछा। बेहतर हूँ सर, ईमान ने मुख्तसर जवाब दिया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद रूहान ने कहा, मिस ईमान, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। ईमान के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। जी सर, कहें। वो नौकरी के बारे में तो नहीं कहने वाले थे। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जॉब महफूज है, बल्कि जब तक आप मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती आप घर से काम कर सकती हैं। मैंने आपके लिए कुछ आसान टास्क अरेंज करवा दिए हैं। ईमान की आंखों में हैरत और शुक्र दोनों थे। सर, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इसने हिम्मत करके पूछ लिया। रूहान चंद हमें खामोश रहा, जैसे अल्फाज तलाश कर रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, शायद इसलिए कि मैं नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। ईमान के दिल में खलचल सी हुई थी। वो कुछ बोल न सकी। और एक बात और, रूहान ने संजीदगी से कहा, आप खुद को अकेला मत समझे। अब आप अकेली नहीं हैं। ईमान ने नज़रें उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में पहली बार इसे खलूस नजर आया था। कोई दिखावा नहीं, कोई मतलब नहीं, बस एक सच्चा एहसास। इसी लम्हे ईमान के दिल में कुछ बदलने लगा था, जैसे इसके अंदर एक उम्मीद की एक नई किरण जाग रही हो। मगर वो डर भी रही थी। वो फिर से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक बार वो सब कुछ खो चुकी थी। रात को वो देर तक जागती रही, सोचती रही, क्या वाकई ज़िंदगी इसे एक और मौका दे रही है, या ये भी एक इम्तिहान है। इसने अपने पेट पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, मैं अब कोई गलत फैसला नहीं करूँगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। इधर रूहान अपनी गाड़ी में बैठा वापस जा रहा था, मगर इसका जहन वहीं अटका हुआ था। ईमान की आंखों में से जो दर्द नजर आया था वो इसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। वो खुद से सवाल कर रहा था, आखिर क्यों एक आम सी लड़की के लिए इतना महसूस कर रहा है? कहानी अब एक नए रुख पर थी, जहाँ दो टूटी हुई जिंदगियां आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रही थी। मगर ये क्या कुर्बत मोहब्बत में बदलेगी, या फिर किस्मत एक बार फिर कोई नया मोड़ लाएगी? ये अभी बाकी था। दिन गुजरते गए और ईमान आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी थी। वो अब घर से ही काम करती थी। रूहान ने वाकई इसके लिए सब कुछ आसान कर दिया था। न सिर्फ काम, बल्कि इसकी दवाइयाँ, चेकअप, सब कुछ वक्त पर होता था। ईमान अब पहले जैसी कमज़ोर नहीं रही थी। इसके चेहरे पर सुकून आ गया था, मगर दिल में एक हल्का सा खौफ अब भी बाकी था। 7वां महीना मुकम्मल होते होते इसकी तबीयत फिर से खराब रहने लगी थी। एक रात अचानक इसे शदीद दर्द महसूस हुआ। वो घबरा गई थी। इससे फ़ौरन सना को कॉल की। सना ने बिना वक्त ज़ाया किए रूहान को इत्तला दी, और कुछ ही देर में रूहान खुद वहां पहुंच गया था। ईमान को इस हालत में देखकर वो परेशान हो गया था। फ़ौरन इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि केस थोड़ा पेचीदा है, मगर वो पूरी कोशिश करेंगे। वो रात ईमान की ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। दर्द से वो तड़प रही थी। बार बार ज़िशान का नाम इसकी ज़ुबान पर आ रहा था, और साथ ही अपने बच्चे के लिए दुआ मांग रही थी। बाहर रूहान बेचैन होकर बार बार चहलकदमी कर रहा था। इसके दिल में एक अजीब सी दुआ थी। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों इतना बेचैन है। कई घंटों के बाद अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी, और इस आवाज़ ने जैसे सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुरा कर बोले,
मुबारक हो, बेटा हुआ है, मगर माँ बहुत कमज़ोर है, इन्हें होश में आने पे वक्त लगेगा। रूहान ने पहली बार सुकून का सांस लिया था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो अंदर गया तो नर्स ने नन्हे से बच्चे को इसकी तरफ बढ़ाया था। रूहान ने हिचकिचाते हुए इसे गोद में लिया। वो बहुत छोटा सा था, मगर इसकी सांसें जिंदगी से भरी हुई थी। रूहान के दिल में एक अजीब सी नरमी उतर गई थी। कुछ घंटों बाद ईमान को होश आया। इसने आंखें खोली तो सबसे पहले इसके लबों पर एक ही सवाल था, मेरा बच्चा ठीक है ना? रूहान फौरन इसके पास आया, नरमी से बोला, बिल्कुल ठीक है और आपका बेटा बहुत बहादुर है। ईमान की आंखों से आंसू बहने लगे थे। इसने आहिस्ता से कहा, मुझे दिखाएं। जब बच्चे को इसकी गोद में रखा गया तो ईमान जैसे सब कुछ भूल गई थी। इसने इसे सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, तुम मेरे सब कुछ हो, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। रूहान खामोशी से ये मंजर देख रहा था। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, मगर साथ ही एक फैसला भी जन्म ले रहा था। चंद दिन बाद ईमान को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो अपने बच्चे के साथ इसी फ्लैट में आ गई थी। जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक कमज़ोर लड़की नहीं रही थी, वो एक माँ थी और माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। एक शाम रूहान वहाँ आया। ईमान ने दरवाज़ा खोला तो इसके हाथ में कुछ था। वो अंदर आया और सीधा बात की तरफ आया। मिस ईमान, मैं आज आपसे एक आखिरी बात करना चाहता हूँ। ईमान का दिल तेज धड़कने लगा था। जी सर। रूहान ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं जानता हूँ आपने बहुत कुछ सहा, शायद अब दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती, मगर मैं ये भी जानता हूँ आप अकेली सब कुछ नहीं संभाल सकती। मैं आप और आपके बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो। ईमान जैसे सुन हो गई थी। वो कुछ लम्हे खामोश रही। इसके जहन में माजी की तमाम तकलीफ़ें घूम गई। ज़ीशान की मोहब्बत, इसका खो जाना, लोगों के ताने, अपनी बेबसी, मगर फिर इसने अपने बच्चे की तरफ देखा जो सुकून से सो रहा था। इसने आहिस्ता से सर उठाकर रूहान की तरफ देखा। इसकी आंखों में सच्चाई थी, कोई लालच नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक साफ नीयत। ईमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एक शर्त पर। रूहान ने फौरन पूछा, कैसी शर्त? ईमान ने अपने बच्चे को देखते हुए कहा, आपको पहले इसका बाप बनना होगा, फिर मेरा साथ देना होगा। रूहान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। इसने नरमी से कहा, मुझे मंजूर है। इसी लम्हे जैसे ईमान के दिल का बोझ हल्का हो गया था। इसने पहली बार दिल से सुकून महसूस किया था। कुछ महीनों बाद एक सादा सी तकरीब में इन दोनों का निकाह हो गया था। कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस चंद गवाह और सच्ची नीयत। रूहान ने ईमान और इसके बेटे को वो इज्जत दी जिसकी वो हकदार थी, और ईमान ने भी अपनी टूटी हुई जिंदगी को दोबारा जोड़ लिया था। वक्त के साथ साथ इनके दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता कायम हो गया था, जो सिर्फ हमदर्दी पर नहीं बल्कि इज्जत, एतमाद और सच्चे एहसास पर मबनी था। और यूं ईमान की जिंदगी का वो अंधेरा बाब ख़त्म हुआ, जहाँ वो अकेली थी, बेबस थी, और एक नई सुबह का आगाज हुआ, जहाँ वो एक मजबूत औरत, एक माँ और एक खुशहाल बीवी थी। कुछ कहानियाँ दर्द से शुरू होती हैं, मगर ख़त्म हमेशा सुकून पर होती हैं, और ईमान की कहानी भी इन्हीं में से एक थी।